بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام رفت ہے، میں شادی شدہ ہوں۔ میرے 2 ہی بچے ہیں، ایک بیٹی اور بیٹا۔ اچانک میری بیٹی کا معذور ہو جانا کافی حیران کن تھا، جس کی وجہ تو اس کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، لیکن حقیقت میں معذور ہونے کے پیچھے ایک جنزادے کی کوتاہی تھی۔ میرا نام رفت ہے، میں شادی شدہ ہوں۔ میرے 2 ہی بچے ہیں، ایک بیٹی اور بیٹا ہے۔ میرا شوہر مزدور ہے۔ ویسے تو میری زندگی اچھی گزر رہی تھی، لیکن اچانک میری بیٹی کا معذور ہو جانا مجھے بہت پریشان کر گیا اور ذہنی اذیت بھی ہونے لگی تھی۔ میری بیٹی کالج میں پڑھتی تھی، اسے ماسٹرز کرنا تھا، لیکن ایک دن کالج جاتے ہوئے واپسی پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے بولا کہ وہ اب کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ میری بیٹی کی حالت کافی نازک تھی، سب مایوس ہو چکے تھے، لیکن اس سب کی شروعات ایک حادثے کی وجہ سے ہوئی تھی، جس کی وہ خود بھی ذمہ دار تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ ایک غلطی نہ کرتی تو شاید وہ معذور ہی نہ ہوتی۔ جمعے کا دن تھا، میری نند گھر چلی آئیں۔ میرے 2 دیور تھے جو ماشاءاللہ سے اپنے اپنے گھر بار والے تھے، جبکہ نند ایک ہی تھی جو سب بہن بھائیوں سے بڑی تھی۔ شروع میں میری نند کی مجھ سے بالکل نہیں بنتی تھی، جس میں سارا قصور انہی کا تھا، کیونکہ وہ اپنی باتوں اور تانے دینے کی وجہ سے بے حد غصہ دلا دیتی تھی۔ میں تو پھر نظر انداز کر دیتی تھی، جبکہ ثانیہ اور میرا بیٹا دونوں ہی منہ پھٹ اور جذباتی تھے، منہ پر ہی جواب دے دیتے تھے۔ ان دونوں میں ہی برداشت نہ تھی۔ وہ آئیں تو جمعے کا دن تھا اور اس دن میرے شوہر کی چھٹی ہوتی تھی۔ وہ اکثر اپنے بھائی کی موجودگی میں ہی آیا کرتی تھی۔ میں نے سلام دعا کی اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بچے تو اپنے اپنے کالج گئے ہوئے تھے۔ چائے پانی کا پوچھا تو نند نے انکار کر دیا کہ پہلے پاس بیٹھوں۔ میں کافی حیران ہوئی اور تعجب سا ہوا۔ آج سے پہلے تو انہوں نے مجھے اتنے پیار سے پاس بیٹھنے کو کبھی نہیں کہا تھا، جبکہ بات کرنا تو دور کی بات تھی۔ میں شش و پنج میں مبتلا وہیں بیٹھ گئی۔ میرے شوہر بھی ساتھ ہی اپنی بہن کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آج کسی خاص مقصد سے تم لوگوں کے پاس آئی ہوں، میری نند نے کہا تو میں چونک سی گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پل اپنی نند کے لہجے میں اتنی مٹھاس برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور میں سوچوں میں گم سوچنے لگ گئی کہ آخر ان کو کیا کام آ پہنچا ہے، کیونکہ جب بھی وہ ایسا رویہ اپناتی تھی تب تک انہیں کوئی اپنی ذات کا مقصد ہوتا تھا، اور اس وقت بھی میں وہاں بیٹھے آپا کے مقصد کو سوچنے لگ گئی تھی۔ جی آپا بتائیں کیا بات ہے؟ میرے شوہر نے بے حد احترام سے پوچھا۔ میرے شوہر کی اپنی بہن سے کافی بنتی تھی، اور وہ کبھی کبھار بہن کی محبت میں اپنی اولاد تک سے بدگمان ہو جاتے تھے، جس پر زیادہ تر ثانیہ کو شکایت بھی ہوتی تھی۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ ثانیہ کا رشتہ کہیں طے کیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے ٹو لینے والے انداز میں جھک کر اپنے بھائی سے پوچھا، جبکہ مجھے تو وہ اکثر فراموش کر چکی تھی کہ میں بھی پاس بیٹھی ہوئی ہوں۔ مجھے ان کا یہ انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ نہیں آپا، ابھی وہ پڑھ رہی ہے، جب پڑھائی مکمل کر لے گی تو شادی بھی ہو جائے گی، میرے شوہر نے رسان سے آپا کو جواب دیا۔ تو وہ سر ہلاتے ہوئے معنی خیز انداز میں مسکرانے لگی۔ اچھا رفت، تم نے کہیں دینے کا سوچا ہوا ہے کیا؟ کافی دیر تک وہ ہنستی رہی، ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئی، اور پھر اچانک میری جانب رخ کیا۔ شاید انہیں یاد آ گیا تھا کہ ایک عدد بھابھی کو وہ پاس بٹھا چکی تھی۔ میری جانب مڑ کر مجھ سے سوال کرنے لگی۔ میں نے اپنا لہجہ قدرے نرم کرنے کی بھرپور کوشش کی تاکہ اپنا غصہ قابو میں رکھ سکوں اور ظاہر نہ کروں تو بہتر تھا، کیونکہ میرے لہجے پر وہ اپنے بھائی کو بھڑکانے کی کوشش بھی کر دیتی تھی۔ نہیں، میں نے ابھی کچھ نہیں سوچا، جب تک ثانیہ کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی ایسا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے آرام سے جواب دیا، کیونکہ ثانیہ کو ماسٹرز کرنا تھا اور وہ کسی صورت بھی ماسٹر سے پہلے شادی کے لیے تیار نہیں ہو سکتی تھی، جس کا علم اس کے باپ کو بھی تھا۔ چلو اچھا ہے کہ تم لوگوں نے کہیں بھی بات نہیں چلائی۔ دراصل میں ثانیہ کا رشتہ مانگنے آئی ہوں، اور مجھے امید ہے تم دونوں مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ بلا آخر بلی تھیلے سے نکل آئی، اور ایسی نکلی کہ میرے اعصاب ختم ہو گئے۔ ان کا بیٹا جو پیسے کما کر جوئے میں لگا دیتا تھا یا پھر شرطیں لگا کر ہار جاتا تھا، اس کے لیے وہ میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ میرا تو دل پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔
तभी तो वो इतनी देर से लहजे में मिठास लिए बैठी थी ताकि अपना मकसद पूरा कर सके। ऐसे तो उन्हें चैन नहीं मिलने वाला था। लेकिन आपा, मैंने एकदम इनकार के लिए मुंह खोला तो मेरे बोलने से पहले ही मेरे शौहर बोल पड़े, आपा, ये तो खुशी की बात है कि मेरी बेटी अपनों में भी आई जाएगी। मुझे अपने शौहर की खुशी देखते हुए बेहद ताव आया। वो अपनी बेटी को आंख में डालने के लिए कैसे बेताब हो रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की कि नजरों के इशारे से उन्हें इनकार के लिए रजामंद करूं, लेकिन वो मुझे देखकर भी नजरअंदाज कर गए। मैं सानिया का सोचने लग गई, जिसे ये इल्म होगा तो न जाने क्या तूफान आने वाला था। हाँ, तभी तो रिश्ता मांगने आ गई हूँ। भला भाई से बेहतर कोई घर था क्या? वरना कई लोग अपनी बेटियों का रिश्ता मुझे देना चाहते थे। और तुम क्या कह रही थी रिफत? मेरी नंद ने बातों बातों में हम पर एहसान करने की कोशिश भी की। भला कोई अपने जुआ खेलने वाले बच्चे पर इतना गुरूर कर सकता है? मैं दिल ही दिल में बेचैनी से पहलू बदलने लगी। अब शौहर के सामने नंद को कुछ कह भी नहीं सकती थी। कुछ भी नहीं, आप बैठे, कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। मैंने नफी में सर हिलाया और बदली सी वहां से उठ गई। खाने का इंतजाम करते हुए मेरा ध्यान सानिया के रवैये पर जमा हुआ था, जो ये जानकर बहुत शोर शराबा करने वाली थी, और उसे चुप कराना तो मेरा क्या उसके भाई के बस में भी नहीं था। मैंने सोचों में गुम जैसे तैसे करके ही दिन का खाना बना लिया था, लेकिन मेरी नंद उजलत में थी, सो अपने भाई से रजामंदी हासिल करते ही वहां से चली गई। शाम को जब मेरी बेटी कॉलेज से वापस आई तो मैंने उसे फुप्पो के आने की वजह बताई तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि मेरे बेटे ने भी ये सुनकर गुस्से का इजहार किया। वो अपनी बहन से बेहद मोहब्बत करता था। लड़ना झगड़ना तो मामूली बात थी। मैं खुद परेशान थी कि कैसे इनकार करूं। शौहर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे झिड़क दिया था। मैं फुप्पो के बेटे से शादी नहीं कर सकती, सानिया ने गुस्से से कहा और अपने बेड पर पैर फैलाकर बैठ गई, जबकि मेरा बेटा भी बहन के पास जाकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ है? अच्छा भला कमाता है, नौकरी भी है और घर भी है। अचानक मेरे शौहर कमरे में चले आए और गुस्से से पूछने लगे। सानिया अपने अब्बा को देखकर सहम गई थी, जबकि मैं खुद डरने लगी कि अब बहस में बिला वजह इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। आप आसाइशें देखकर मुझे आग में झोंकना चाहते हैं, लेकिन मैं उस आग में बिल्कुल भी नहीं कूदने वाली। सानिया ने अपने भाई के पीछे छुपकर डरते डरते अपनी बात दोहराई, जबकि मेरे शौहर के चेहरे पर गुस्सा छाने लगा, जिसका मतलब था कि उन्हें सानिया का यूं बेधड़क बोलना नागवार गुजरा है। कोई बात तो होगी, बताओ, शायद हल निकल आए। मैंने शौहर के सामने कदरे सुकून से सानिया को पुचकारा। हल ही तो नहीं है, आप जानती हैं ना कि बचपन से वो आपको ताने देती आ रही हैं। आपको लगता है वो मुझे सुख का सांस लेने देंगी? मेरे बेटे ने सानिया को खुद से दूर किया और बहस में अपना आप ले आया। वो पहले की बात थी बेटा, अब ऐसा नहीं होगा। मैं बमुश्किल बेटे को खामोश रहने के इशारे करने में कामयाब हुई, क्योंकि मेरा शौहर कभी मुझे तो कभी बच्चों को अपनी कड़ी नजरों से घूर रहा था। ऐसा ही होगा, पहले की बात नहीं थी। वो जैसा बर्ताव कर रही हैं, उनसे किसी भी चीज की उम्मीद रखना सरासर बेवकूफी है। मेरे बेटे ने चिढ़कर एक एक बात मुझे सुना सुना कर बताई, जो हकीकत में मेरी नंद वैसा कर चुकी थी। मैं तो शौहर और बेटे को घरेलू बातें नहीं बताती थी, लेकिन सानिया अपने भाई को हर बात बताती रहती थी। तभी मेरा बेटा हर एक बात से बखूबी वाकिफ था और इस पर अपनी बहन की ढाल बनकर खड़ा हुआ था। इसकी शादी होगी तो आपा के ही बेटे से होगी, वरना किसी से नहीं हो सकती। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे इसकी शादी नहीं होने देते। मेरे शौहर ने हम तीनों माँ बेटे और बेटी को देखते हुए अपना अटल फैसला सुनाया। मैंने बेबसी से दोनों बच्चों को देखा, जिनके चेहरे मुरझा गए थे। मुझे कोई डर नहीं है। इस्लाम में लड़की की रजामंदी का इख्तियार है। मैं हाँ या ना कहने का हक रखती हूँ, सानिया ने कहा और वहीं बैठ गई। और काफी देर तक बहस मुबाहिसे में ये बात बढ़ती चली गई। मेरा बेटा बहन की तरफदारी कर रहा था, जबकि मैं बाप बेटे के दरमियान फंस चुकी थी। कभी बेटे को रोकती तो कभी शौहर को। बिलाखिर काफी देर बहस के बाद मेरे बेटे ने घर छोड़ने की धमकी दी तो शौहर ने हार मान ली, क्योंकि इकलौता बेटा होने की वजह से वो उसे घर बदर नहीं कर सकते थे। इस वजह से वो हार मान गए और सानिया के रिश्ते का अपनी बहन को उसी पल फोन करके इनकार कर दिया। आपा ने वजह जानना चाही, लेकिन मेरे शौहर ने पहली मर्तबा अपनी बहन को इनकार करते हुए एकदम से फोन बंद कर दिया, जबकि मेरे दोनों बच्चे अपनी जीत पर बेहद खुश थे।
اور میں نے خود بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ میری بیٹی ایک برے عذاب سے بچ گئی تھی۔ رات گئے تک دونوں بہن بھائی باتوں میں مصروف رہے، جبکہ میں نے شوہر کا موڈ بہتر کرنے کے لیے 100 جتن کیے، لیکن وہ بچوں کے سامنے تو ہار گئے، جبکہ میرے ساتھ اپنا رویہ سخت ہی رکھا۔ یوں ہی صبح ہو گئی اور میرے اٹھنے سے قبل ہی بھوکے پیٹ وہ کام پر چلے گئے، جبکہ وہ صبح سویرے میرے ہاتھ کی چائے پی کر ہی کام پر روانہ ہوتے تھے۔ امی، مجھے لگتا ہے ثانیہ کو پڑھائی چھوڑ دینی چاہیے۔ دوسرے دن میرے بیٹے نے ثانیہ کو تنگ کرنے کے لیے اسے چھیڑ دیا، جو کالج کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے دونوں کو ناشتہ دیا اور خود بھی ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگ گئی۔ میرا بیٹا ثانیہ سے 2 سال چھوٹا تھا اور اس کی عمر 18 سال تھی، لیکن دیکھنے میں وہ ثانیہ کا ہی ہم عمر لگتا تھا۔ رات گئے تک باتیں کرنے پر دونوں تو کالج جانے کے لیے بھی راضی نہ تھے۔ میں نے زبردستی دونوں کو اٹھایا اور تیاری کا حکم دیا۔ خبردار جو تم نے امی کے کان بھرے تو، ثانیہ نے اسے باور کراتے ہوئے دھمکی دی اور جلدی جلدی ناشتہ ختم کرنے لگی۔ جانے وہ آج اتنی جلدی میں کیوں تھی؟ گھر سے بوجھ کم ہوگا تبھی میری بھی شادی ہوگی نا؟ ثانیہ کو کہتے ہوئے بیٹے نے تنگ کیا تو وہ ناشتہ کرتے کرتے منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ میں نے بیٹے کو گھورا اور ثانیہ کو دوبارہ سے چائے کا کپ پکڑایا۔ میرے شوہر فجر کی نماز پڑھ کر ہی بھوکے پیٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ کھانا میں بنا کر بیٹے کے ہاتھ بھجوا دوں گی یا پھر محلے کے کسی بچے کے ہاتھ بھیج دوں گی تاکہ وہ بھوکے پیٹ نہ رہیں۔ امی آج دال چاول بنائیے گا اور تم چلو مجھے کالج چھوڑ کر آؤ، ثانیہ نے مجھ سے فرمائش کی اور بھائی کے ساتھ نوک جھونک کرتی ہوئی اس کے ساتھ کالج روانہ ہو گئی، جبکہ میں پیچھے ناشتہ ختم کر کے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف ہو گئی، کیونکہ کام ختم کرنے کے بعد ہی مجھے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی اور ثانیہ بھی جاتے جاتے فرمائش کر گئی تھی۔ اس کے پسند کا بھی خیال کرنا ضروری تھا، ورنہ وہ منہ پھلا لیا کرتی تھی اور 2 یا پھر 3 وقت کا کھانا چھوڑ کر کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ میں کام ختم کر کے ثانیہ کی پسند کی دال چاول بنا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ اچانک میرا شوہر بوکھلاہٹ کا شکار سا گھر میں داخل ہوا اور کمرے میں جا کر الماری کھول کر چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو ان کے الفاظ نے میرے پیروں تلے زمین نکال لی۔ ثانیہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں نے یہ سن کر ایک دم اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اللہ خیر، کیسے ہو گیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ صبح ہی تو بھائی اسے ساتھ لے کر گیا تھا، ابھی چھٹی کا وقت تھا لیکن وہ نہیں آئی، کافی دیر سے اس کا میں انتظار کر رہی تھی اور اب اچانک یہ آزمائش۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ پتہ نہیں، لیکن ہمیں اسپتال بلایا ہے، اندر دوسرے کمرے میں بھی الماری میں کچھ پیسے پڑے ہیں، لے آؤ۔ میرے شوہر نے الماری سے پیسے نکال کر بنا گنے اپنی جیب میں ڈالے اور مجھے دوسرے پیسے لانے کو کہا۔ میرے ہاتھ پیر پھول چکے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بھی ساتھ چلوں گی، میں نے عجلت میں ہاں کرتے ہوئے کہا۔ تم کیا کرو گی؟ خواہ پریشان ہوتی رہو گی۔ میرے شوہر نے مجھے حیرانگی سے ٹوکا اور پیسے لانے کو بولا۔ نہیں، میں ساتھ چلوں گی، رکے، میں پیسے اور چادر لے کر آتی ہوں، میں نے نفی میں سر ہلا کر روتے ہوئے کہا اور دوسرے کمرے میں جا کر الماری میں سے پیسے اٹھائے اور چادر اوڑھے شوہر کے ساتھ اسپتال چلی آئی۔ وہاں میری نند اور ان کا بیٹا اور دیور بھی موجود تھے، جبکہ میرا بیٹا بھی وہیں تھا۔ اسی نے مجھے بتایا کہ وہ ثانیہ کو لینے جا رہا تھا، لیکن وہاں پہنچنے پر پتا چلا کہ ثانیہ روڈ پار کرنے کی کوشش میں ایک گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ خون بے حد بہہ چکا تھا اور ہڈیاں ٹوٹنے کی بھی شکایت تھی، جبکہ ڈاکٹر پر امید نہ تھے۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ میں نے ہاتھ جوڑے فریاد سے پوچھا۔ بس دعا کرے، حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا اور وہ ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہو گیا۔ پیچھے میں دعاؤں کے لیے جھولی پھیلائے ساروں قطار رونے لگی۔ نہ جانے میری بیٹی کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا تو ہم سب ان کے ارد گرد ہجوم کی طرح کھڑے ہو گئے۔ میں ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات جانچنے لگ گئی۔ جانے کیوں دل کی دھڑکن بے حد تیز چل رہی تھی، دل میں 100 طرح کے خدشات تھے۔ آپ کی بچی خطرے سے باہر ہے، لیکن اب وہ چل پھر نہیں سکتی، معذور ہو چکی ہے، ڈاکٹر نے کہہ کر میرے شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ میرے بیٹے نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ پیروں پر سے گاڑی کے ٹائر گزرنے کے باعث ہڈیوں کا کافی نقصان ہو چکا تھا، اور اب یہ غم ملنے کے باوجود میں نے ثانیہ کے ٹھیک ہونے پر شکر ادا کیا۔ ہائے اللہ، میرے بھائی پر تو بوجھ بن گئی ہے اس کی بیٹی۔ میری نند نے آگے بڑھ کر اپنے ذہن کا خناس نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹھیک ہو سکتی ہے اگر وہ خود کوشش کرے تو۔
अगर उसने खुद हिम्मत हार दी तो तब बहुत मसला हो सकता है। डॉक्टर फिर भी पुरुम्मीद थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरे शौहर ने शुक्रिया अदा किया और मैं सानिया के पास चली गई। काफी दिन तक तो वो अस्पताल में ही ज़ेरे इलाज रही और हफ्ते के बाद वो घर चली आई। घर में भी मैंने उसकी देखभाल में कोई कसर न छोड़ी थी। वक्त पर दवा वगैरह के साथ वर्जिश भी कराना शुरू कर दी थी ताकि वो मुकम्मल ठीक हो जाए। एक दिन उसने कोशिश की तो वो अपने पैरों पर खड़े होने में कामयाब हो गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा था क्योंकि सानिया ने खुद इतने दिनों बाद कोशिश की थी जिसका नतीजा बहुत अच्छा निकला था। एक दिन नंद आई और सानिया का हाल अहवाल पूछने लगी। मैंने उनके सामने मिठाई रखी तो उन्होंने मिठाई की वजह पूछी। चूंकि मिठाई मैंने सानिया की जमीन पर खड़े होने के लिए मंगवाकर बांटी थी और कुछ बच भी गई थी। आपको पता है सानिया ने चलने की कोशिश की है। मैंने खुशी से अपनी खुशी का इजहार करते हुए वजह बताई। है ना करो भाई। मेरी नंद ने मिठाई खाते हुए अपनी आंखें हैरत से खोलते हुए मुझे देखा, जैसे उन्हें मेरी बात पे जरा सा यकीन नहीं आया था। बिल्कुल, उसने चलने की कोशिश भी की है और चंद कदम चली भी है। हमने डॉक्टर को बुलवाया। उसने कहा कि ये अगर मजीद कोशिश करे तो जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने धीरे धीरे डॉक्टर की दोहराई हुई सारी बात आपा को बता दी तो वो मजीद हैरान सी हुई। जाने क्यों उनके चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे उन्हें जरा खुशी नहीं हुई। ऐसे कैसे हो सकता है? वो मिठाई की प्लेट रखकर बड़बड़ाई। क्या मतलब है आपका? मैंने जांचती हुई नजरों से देखते हुए उनसे पूछा। कुछ नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये चलने फिरने लगेगी, आपा ने कहा और दोबारा से मिठाई उठा ली। जबकि मैं कभी हैरान होती तो कभी सानिया को देखती जो सामने ही चारपाई पर लेटी हुई किताब पढ़ रही थी। हाँ, अल्लाह का शुक्र है आपा, मेरी दुआएं रंग ला रही हैं, मैंने खुश दिली से कहा। हाँ, जल्दी से ठीक हो जाओ तुम, फिर मेरी बहू भी तो बनोगी। आपा ने आखिरी मिठाई का पीस अपने मुंह में डालते हुए बराह रास्त सानिया को मुखातिब किया। उनके इस अंदाज पर मुझे बेहद गुस्सा आया, लेकिन बेटी के चलने की कोशिश की खुशी में ये गुस्सा भी पी गई। पहले ठीक तो होने दे, बात की बाद में देखी जाएगी। मैं और वो भी हाँ में हाँ मिलाते हुए इधर उधर की बातों में लग गईं और थोड़ी ही देर बाद वापस चली गईं। मैंने भी शुक्र अदा किया और सानिया को दवा देकर आराम करने का बोलकर उससे किताब ले ली। कुछ ही दिन बाद मेरी नंद दोबारा चली आई। मैं उनके आने से अब काफी हैरान होती थी। वो बिना बताए आती थी और थोड़ी ही देर बैठकर चली जाती थी, जिसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इस बार वो आई तो उनके हाथ एक डब्बा था जिसमें न जाने क्या था। सानिया, ये तुम्हारे लिए खालिस घी है, इससे तुम्हारी हड्डियों में दर्द कम होगा, लाजमी लेना। बिला आखिर हाल अहवाल पूछकर आपा ने सानिया को वो डब्बा पकड़ाया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आप वापस ले जाएं। सानिया को देसी घी बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ना ही वो खाती थी, इसलिए उसने वापस पकड़ाते हुए मुंह बनाया। वापस क्यों लेकर जाऊं भाई, तुम्हारे लिए लाई हूँ तो तुमने ही खाना है, मेरे भाई पर बोझ थोड़ी बनने दूंगी। जल्दी से ठीक हो जाओ, आपा ने धौंस जमा कर कहा और साथ ये भी कहा कि वो उसके पैसे नहीं ले रही बल्कि अपनी मर्जी से लेकर आई हैं, जो मेरे और सानिया के लिए किसी मौके से कम बात न थी। आपा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने हैरान होकर आपा से पूछा। वो कभी कभी इतनी अच्छी बन जाती थी कि यकीन ही नहीं होता था कि कुछ कभी उन्होंने किया होगा, और कभी वो बिल्कुल ही रवैया बदलकर सुना देती थी। कैसी बातें कर रही हूँ बताओ? ठीक है तो कह रही हूँ कि बिना दवा खाए ठीक हो जाएगी ये। उन्होंने उल्टा मुझे ही सुनाना शुरू कर दी। सानिया भी बेजार से चुपचाप बैठी हुई थी। वो तो सुबह से ही कह रही थी कि उसके सर में दर्द है। अब आपा की कड़वी कसीली सुनकर वो नाक मुंह चढ़ाने लगी, जिस पर मुझे हंसी भी आई, जिसे मैंने लबों में ही दबा लिया। लेकिन शायद आपने सुना नहीं था उस दिन डॉक्टर ने क्या बोला था, मैंने तन कर कहा, क्योंकि वो अपनी हद से तजावुज कर रही थी और रोज रोज बर्दाश्त करने की ही वजह से वो बार बार ऐसी बातें करती थी, जिसकी वजह से सानिया भी काफी एहसास से कमतरी का शिकार हो जाती थी। कभी खाना पीना छोड़ देती तो कभी दवा लेने से इनकार कर देती थी, और फिर मैं बेटे को बताकर जबरदस्ती खाना खिलाकर दवाई वगैरह देती थी। वही सिर्फ धौंस जमा कर ये काम कर सकता था। हाँ, सुना है कि ये अब कभी नहीं चल सकेगी। एक ही सूरत में चल सकती है कि ये खुद कोशिश करेगी, तो अब कोशिश तो उसने करनी नहीं है। ऐसी खुराक दो कि ठीक हो जाए। मुझे तो लगता है ये खुद ही ठीक नहीं होना चाहती। आपा ने मुकम्मल लाया अमल तय करते हुए हुक्म दिया।
अम्मी, इन्हें कहें मैं खा लूंगी, लेकिन ये जाएं, मेरी तबीयत नहीं बेहतर, सर में बहुत दर्द हो रहा है। सानिया, जो कब से सर दोनों हाथों में दबाए बैठी थी, चिढ़कर बोली, अच्छा भाई, मैं जाती हूँ। माँ बाप न हो तो ऐसी बेटियों को भाभियां घर से निकाल देती हैं। आपा ने जाते जाते अपना जज्बाती सीन शुरू करना जरूरी समझा और यही अंदाज तकरीबन वो 10 मिनट तक कायम रखे रही और चाय पीने के बाद वापसी की राह ली। वो जब चली गई तो मैं सानिया की तरफ आई, जो कब से कमरे में सर थामे बैठी हुई थी और अपनी फुप्पो की बातें सुन सुनकर चिढ़ रही थी। ये क्या चीज है अम्मी, कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं? मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होता। उसने मुंह बनाकर मुझसे बेचारगी से पूछा। वो ऐसी ही थी, 20 साल की हो चुकी थी, लेकिन बर्दाश्त नामी कोई चीज उसमें ना थी, जबकि मैं इतने सालों से ये सब बर्दाश्त कर रही थी। अच्छा तुम छोड़ो, बताओ सर दर्द की दवा लोगी या फिर सोना चाहती हो? मैंने उसे सर थामे देखकर फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, बाद में ही कुछ करूंगी, उसने जवाब दिया। तो मैंने सर इस्पात में हिलाकर उसे लिहाफ उड़ा दिया और खुद से बाहर निकल आई ताकि वो कुछ देर आराम कर सके। क्या बनाया है? 2-4 दिन यूं ही गुजर गए थे। सानिया को भूख लगी हुई थी, लेकिन मैंने घर में कुछ खास अच्छा नहीं बनाया हुआ था। पालक आलू बने हैं बेटा, मैंने सानिया को कुदरत झिझक कर जवाब दिया, क्योंकि उसे पालक आलू जरा भी पसंद न थे। आपको पता तो है मैं नहीं खाती, उसने कहा तो मैं परेशान हो गई। सुबह से घर में मशीन लगाकर मैं कपड़े धोने में मसरूफ थी। जब सानिया ठीक थी तो कपड़े वही धोती थी, लेकिन आज इन कामों में उलझकर मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, बल्कि रात का बिना सालन ही खाने पर इत्तफा किया। अच्छा मैं कुछ और बना देती हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार करो। मैंने उठकर कुछ बनाने का कहा। अम्मी, जो फुप्पो घी लाई थी वो डालकर ले आए, भूख लगी हुई है। उसने मुझे बनाने से मना कर दिया और घी लाने को बोली। मैं हैरान हुई, क्योंकि उसे कभी भी घी पसंद नहीं था। तुम तो घी नहीं खाती, फिर क्यों? मैंने उसके सामने अपनी हैरत का इजहार भी कर दिया। भूख बहुत लगी है तो बस उस वजह से खाना पड़ेगा, उसने मुंह बिगाड़ कर कहा। तो मैं घी गर्म करके उसमें शक्कर डालकर ले आई। अच्छा ठीक है, खा लो, मैं चाय भी बना लाती हूँ, उसे कहकर मैंने चाय का भी कहा तो वो रुग्बत से घी खाते हुए सर हिलाने लगी। जी ठीक है, आप भी थोड़ी देर आराम कर लीजिए, उसने कहा। और फिर खाना खाकर चाय पीकर मैंने उसे दवा दे दी ताकि वो आराम कर ले, और मैं खुद भी आराम करने की खातिर लेट गई। एक दिन मैंने देखा कि मेरी बेटी उठकर रात के पहर कहीं जा रही है और उसकी व्हीलचेयर खुद ब खुद आगे बढ़ रही है। ये देखते ही मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, लेकिन मैंने बर वक्त उसे रोक लिया और व्हीलचेयर से सहारा देकर उठाया और बेड पर लिटा दिया और सारी रात जाग जाग कर उसकी चौकीदारी की। सुबह होते ही मेरी नंद चली आई और सानिया का हाल दरियाफ्त करने लगी। हाल चाल के बाद वो सानिया के कमरे में चली गई और उसके पास बैठ गई। रात से वो होश में आते ही चिल्ला रही थी। मैंने दवा भी दी, लेकिन कोई अफाका नहीं हो रहा था। काफी कोशिश की, लेकिन वो जूं की तू ही थी, बेसुध पड़ी रही। जब नंद उसके पास गई तो वो एकदम होश में आ गई और आंखें फाड़े उन्हें देखने लगी और एकदम उठ के बैठ गई। तुमने मेरे ऊपर जादू किया था? सानिया ने नंद के गले पर अपना हाथ रखते हुए हुर्रा कर पूछा। मैं सानिया का ये अंदाज देखकर डर गई। नहीं, मैं क्यों करूंगी, पागल हो क्या? नंद ने झटका देकर अपना गला छुड़ाने की कोशिश की, जबकि वो हकला भी रही थी, लेकिन उस कोशिश में वो नाकाम ही रही। पागल मैं नहीं, तुम हो, तुमने जादू किया है, तुमने देसी घी में जादू के मंत्र पढ़वाए हैं। सानिया ने झटका देकर आपा को पलंग पर फेंका और वहीं ढेर हो गई। मैं हैरान थी कि इतनी ताकत सानिया के अंदर कैसे आ गई थी, वरना मैं खुद ही उसे सहारा देकर बिठाकर दवा वगैरह देती थी। तुम शायद पागल हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रिफत, अपनी बेटी का इलाज कराओ, सानिया से खुद को आजाद कराते हुए आपा ने मुझे देखते हुए कहा। वो शदीद गुस्से के आलम में ठाड़ कर डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सानिया पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये तो बाद में पता चलेगा मैं पागल हूँ या नहीं, पहले मुझे सच्चाई बताओ। सानिया ने आपा का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। आपा ने शोर करना शुरू कर दिया था और अलम गलम बोलने लगी और सानिया को गालियां तक दे डाली। छोड़ो मुझे, आपा ने बिला आखिर सानिया से खुद को छुड़ा ही लिया और झटके से वहां से उठकर सानिया से कदरे दूर जा खड़ी हुई। छोड़ दो सानिया, ये बिल्कुल भी अपना जुर्म कबूल नहीं करेंगी।
मैं थोड़ी थोड़ी कहानी समझ गई कि सानिया के साथ जादू का असर है। जब ही वो आपा से हकीकत जानना चाह रही थी, जब ही मैंने उसे रोक दिया तो वो भी थोड़ा शांत हुई। अपनी बेटी की तरह तुम भी पागल हो गई हो क्या? नन ने मुझे बेयकीनी से देखते हुए मुझसे पूछा। ये शायद सच कह रही है। जब से इसने आपका घी खाना शुरू किया, तब से इसने खुद से चलने की कोशिश भी तर्क कर दी थी और दिन भर सुस्त लेटी रहती थी। मैं जो कई दिनों से सानिया की हरकतों सकनात बगौर देख रही थी, वो हर्फ बहर्फ सब बताने लगी कि कैसे उसने चलना शुरू किया और फिर देसी घी जो आपा लेकर आई थी और वो खाकर सुस्त लेटे रहना। उसके बाद आधी रात को बाहर जाने तक का सब बताया, जिस पे आपा पहले बुरी तरह हंसने लगे, मेरा मजाक उड़ाया और सानिया को भी कड़वी कसीली सुनाई और बाद में हैरत से चेहरे पर मिस्कीनियत छाते हुए पूछा, तुम मुझ पर शक कर रही हो? उनके लहजे पर मुझे ताज्जुब हुआ। नहीं आपा, मैं शक नहीं कर रही, लेकिन यही सच है। ये आधी रात घर से बाहर निकलने की कोशिश भी कर चुकी है। वो तो शुक्र है मैंने इसको रोक लिया, और आपने घी जो दिया था उसमें काले सियाह छोटे छोटे किसी चीज के बीज थे, और जब मैं घी को गर्म करती थी ना, तो उससे घी की खुशबू नहीं बल्कि मोमबत्ती की खुशबू आती थी। मैंने घी की बात भी की जिसमें दाने थे जिनसे अजीब सी महक आती थी। मैंने जब वही घी बेटे को खाने को दिया तो उसने महक सूंघकर ही वापस कर दिया और चखा तक नहीं, जबकि वही महक ज़दा घी सानिया खुशी खुशी खा लिया करती थी। हालांकि ऐसी चीजों में मेरे बेटे से ज्यादा बेटी नुक्स निकालने की आदी थी। ये मैंने नहीं किया, तुम लोग बिला वजह शक कर रही हो। आइंदा मैं यहाँ नहीं आऊंगी। मेरी नन बड़बड़ाई और बहसो मुबाहिसा करके वहाँ से जान बचाकर चली गई। उनके जाते ही सानिया भी एकदम नींद में गुम हो गई। जब उठी तो उसे मैंने ये मंजर याद कराने की कोशिश की तो उसने ला इल्मी का इजहार किया। मैंने सारा दिन उसी को सोचते हुए गुजारा और रात भर सोने से पहले भी सानिया को दवा देते हुए पूछा तो वो चिढ़कर सो गई। फिर रात को अचानक मैं नींद से आधी रात को बेटी को देखने के लिए उठी तो हैरत की इंतहा न रही। उस दिन की तरह वो आज भी जाग रही थी, जबकि जागने के साथ साथ वो व्हील चेयर पर बैठी हुई घर से बाहर जा रही थी। मैंने तेजी से अपने पैरों में जूतियां डाली और नंगे सर उसके पीछे भागी। कहाँ जा रही हो? मैं उसी के पीछे भाग रही थी, लेकिन सानिया की व्हीलचेयर मेरे भागने से और ज्यादा तेज आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई उसकी व्हीलचेयर घसीट कर ले जा रहा हो। क्योंकि मैंने देखा कि सानिया के हाथ उसकी गोद में थे, वो खुद व्हीलचेयर नहीं चला रही थी, जबकि कोई और उसकी व्हीलचेयर घसीट कर ले जा रहा था, जो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था। अम्मी, मुझे रोके, ये क्या हो रहा है? एकदम सानिया होश में आई और पीछे मुड़कर देखते हुए चिल्लाई। वो खुद भी डर गई थी और साथ ही व्हीलचेयर से कूदने की कोशिश करने लगी। मैंने उधर से ही आवाज देकर उसे कूदने से रोका, क्योंकि उसकी व्हीलचेयर घर से बाहर निकल चुकी थी, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर थे और कचरा फैला हुआ था। अगर वो गिर जाती तो मजीद जख्मी हो जाने के इम्कान थे। ये इतना आगे पता नहीं कौन भगा ले जा रहा है, मैंने चिल्ला कर कहा और व्हीलचेयर तक पहुंचने की कोशिश की। अम्मी, इसे रोके ना, सानिया ने बेबसी से मुझे देखते हुए चिल्ला कर कहा। वो रोने लग गई थी। मैं माँ होते हुए भी अपनी जान की परवाह किए बिना पत्थरों से टकराती टकराती व्हीलचेयर के करीब जाने की कोशिश करती तो वो मुझसे यकलक मजीद आगे चली जाती थी। मुझे उस पर सिर्फ और सिर्फ सानिया की फिक्र थी कि वो ठीक रहे, जबकि खुद की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि मेरे पैरों में कई कांटे लग चुके हैं और खून तक रस रहा है। नहीं रुक रही। मैं जितना तेज भागने की कोशिश कर रही हूँ, ये और तेज चली जा रही है। मैंने सानिया को कहा और रुक गई। मेरे रुकने की देर थी, व्हीलचेयर भी धीरे धीरे चलने लगी। न चार मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी और व्हीलचेयर भी आराम और सुकून से आगे आगे चलने लगी। न जाने वो कहाँ जा रही थी। मैंने सोचा कि ये थोड़ा धीरे हो गई तो इसको झपट लूंगी, इसलिए मैं हमवार जगह का इंतजार करने लगी कि ऐसी जगह पर ये चले जहाँ से मैं आसानी से भागकर झपट सकूं। इसलिए मैं उसके पीछे आराम आराम से चलती जा रही थी और साथ ही सानिया को भी तसल्ली दी। वो वीराने से होती हुई एक जानी पहचानी जगह की जानिब चली आई, लेकिन अंधेरे के बायस समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन सी जगह है। साथ ही करीब एक रेल की पटरी थी। उसके साथ साथ चलते हुए अचानक एक रोड आया और उसे पार करते ही वो एकदम सानिया की व्हीलचेयर रोड के दूसरे पार हो गई। मैं चलते चलते थक चुकी थी, लेकिन हिम्मत करके रोड पार कर लिया। मेरे जहन ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। थोड़ी सी रोशनी मैसर आते ही मैंने इर्द गिर्द देखा। सामने ही खेत खलियान थे
اور دوسری طرف پانی کی نہر تھی۔ میں نے بائیں جانب دیکھا تو ایک روڈ تھا اور مشرق کی طرف ایک پرانا کنواں تھا۔ یہ جگہ اور سب چیزیں صرف ایک ہی انسان کے گھر کے قریب تھیں۔ گاڑیوں کی روشنی تیز ہوئی تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ راستہ میری نند کے گھر کی جانب جا رہا تھا، اور وہ ویل چیئر بھی چلتے چلتے کھیتوں سے گزر کر سیدھا میری نند کے گھر کے باہر جا کر رکی تھی۔ میں سوچوں میں گم حیران تھی۔ میں نے ثانیہ کا ماتھا چوم کر اس سے پوچھا کہ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ مجھے تب چاہ کر کچھ چین ملا تو میں پھر سوچنے لگی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ شاید جس جادو کی بات ثانیہ کر رہی تھی وہی جادو ثانیہ کو اپنی پھپھو کے گھر کی طرف کھینچ لایا تھا۔ یہ پھپھو کے گھر کیوں آ گئے؟ میری بیٹی نے حیرانگی سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے حواس پہلے ہی گم ہو چکے تھے۔ اب پھپھو کے گھر کے باہر پہنچنے پر مزید ڈر سی گئی۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اسے غائب دماغی سے جواب دیا تو اچانک مجھے گھر کے اندر سے شور شرابے کی آواز آنے لگی۔ امی، پھپھو کو کوئی مار رہا ہے، وہ اندر شور کر رہی ہیں، آپ کو سنائی دے رہا ہے؟ میری بیٹی نے شور سے گھبرا کر میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ میری نند کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں جیسے کوئی انہیں مار رہا ہو۔ وہ اکیلے ہی گھر میں رہتی تھی کیونکہ بیٹا عموماً کام سے ہفتوں بعد کچھ دن کی چھٹی پر آتا تھا یا پھر اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، جبکہ شوہر کو فوت ہوئے کافی سال گزر چکے تھے۔ ہاں، مجھے بھی آواز آ رہی ہے، میں نے بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور خود بھی دل ہی دل میں وسوسوں کا شکار ہونے لگی۔ نہ جانے اندر کیا ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہم دونوں ہی ماں بیٹی کو بھول چکا تھا۔ پھپھو، دروازہ کھولیں۔ میری بیٹی نے بے چینی سے آگے ہو کر دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور چلانے لگی۔ جو بھی تھا، لیکن پھپھو ہونے کی وجہ سے اس کا دل کافی کمزور تھا۔ فکر مندی سے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تقریباً 5 منٹ بعد ہی دروازہ پیٹتے رہنے کے بعد میری نند نے دروازہ کھول کر ہم دونوں ماں بیٹی کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ بھی شاید بے حد حیران تھیں۔ پتہ نہیں کیسے ہم دونوں یہاں آ گئے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ناسمجھی سے کہا اور ان سے شور کی وجہ پوچھی۔ ہاں، میں نیند سے اٹھی تھی تو اچانک مجھے کسی نے زمین پر پٹک دیا تھا، یا شاید میں خود ہی نیند میں گر گئی تھی۔ نند نے جواب دے کر دروازہ کھول دیا اور میں ثانیہ کی ویل چیئر گھسیٹ کر گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ نند نے کمرے کی روشنیاں جلا دی اور خود وہیں اپنے بستر پر بیٹھ گئے۔ تم خود نہیں گری، تمہیں گرایا گیا ہے۔ اچانک ایک بے حد نکیلی سی آواز ہمارے ارد گرد سنائی دینے لگی، جسے سن کر میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور ثانیہ نے بھی رکھ لیے تھے۔ کون ہو؟ میری نند اپنے بستر سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلائیں۔ تمہاری موت، وہ آواز دوبارہ گونجی۔ کانوں پر ہاتھ رکھنے کے باوجود ہمیں وہ آواز بآسانی صاف سنائی دے رہی تھی۔ امی، یہ کس کی آواز ہے؟ ثانیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر خوف سے پوچھا تو میں نے تسلی دیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑے رکھا تاکہ وہ نہ ڈرے، جبکہ وہ کانپ رہی تھی اور اسے تسلی دینے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میری موت؟ کیوں؟ آپا نے ڈر کر ہمیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نے ثانیہ پر جادو کروایا تھا، اسی کی موت ہوں میں۔ وہ آواز جب گمبھیر آواز میں چلا کر سنائی دی تو ثانیہ اور میں بھی چونک گئے۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر آپا جو کافی خوف زدہ سی آواز کے تعاقب میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ میں نے کوئی جادو نہیں کرایا، آپا نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں پڑے برتنوں کو پٹکنا شروع کر دیا۔ جھوٹ مت بولو۔ جواباً اس آواز کے ساتھ ہی آپا کے کمرے کے باقی برتن خود بخود گرنے لگے، جو کبھی آپا کے سر پر گر رہے تھے تو کبھی زمین پر، جبکہ میں ثانیہ اور خود کا بچاؤ کرنے کے لیے ایک کونے میں حیران پریشان سی کھڑی ہو گئی کہ یہ سب جانے کیا چل رہا تھا۔ تم لوگ اسے لے کر آئی ہو نا؟ بتاؤ یہ کون ہے؟ اچانک آپا ہم دونوں کے قریب آئیں اور میرا بازو پکڑ کر مروڑ ڈالا۔ ثانیہ نے میری چیخ پر چلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنی پھپھو کا ہاتھ پکڑ کر مجھے چھڑانے لگی، جو انہوں نے سختی سے جکڑ رکھا تھا، اور ثانیہ کی پرزور کوشش کے باوجود بھی انہوں نے چھوڑا نہیں تھا، بلکہ مزید گرفت مضبوط کر ڈالی تھی۔ ہم نہیں جانتے ہمیں خود یہاں تک کوئی لایا ہے۔ میں نے جھٹکا دیا اور آپا سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ میں لے کر آیا ہوں تم دونوں کو یہاں، اور میں جن زادہ ہوں۔ دوبارہ سے وہی آواز سنائی دی اور ایک دم سے وہ جن زادہ ہمارے سامنے ایک خوفناک شکل لیے آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر نوکیلے دانت تھے اور ہاتھ بھی کافی بڑے بڑے تھے۔
सानिया ने डर से अपने हाथ आंखों पर रख लिए और चिल्लाने लगी, जबकि मेरी नंद भी थर थर कांप रही थी। मुझे क्यों मारने आए हो? मेरी नंद ने हकला कर पूछा और उस जिनजादे से दूर होने लगी। जादू क्यों करवाया था? क्या चाहती हो कि ये माजूर रहे? जिनजादे ने आपा को पकड़कर हवा में उछाला और फिर दोबारा जमीन पर पटक दिया। हाँ, मैंने करवाया है जादू। उस घी में वो दाने भी जादू के थे। उसकी वजह भी यही है कि इसने मेरे बेटे से शादी से इनकार क्यों किया है। इस तशद्दुद की वजह से आपा ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया था। इसी असना में सानिया ने अपने चेहरे से हाथ हटा लिए और बेयकीनी से पुप्पो को देखने लगी। तुम किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। हर लड़की को अपनी पसंद नापसंद का पूरा इख्तियार है। फिर तुम कौन होती हो उस पर जबरदस्ती करने वाली? जिनजादे ने चिल्ला चिल्ला कर पूछा और दोबारा से आपा के गले पर अपना लंबा हाथ जमा दिया। इसने मेरी तजलील की थी। आपा ने अपना गला छुड़ाने के लिए हाथ पैर जमीन पर मारने शुरू कर दिए। उनकी सांसें अटक गई थीं। अम्मी, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सानिया ने हैरत से मुझे देखते हुए सवाल किया तो मैं खुद चुपचाप ये तमाशा देख रही थी। नफी में सर हिलाते हुए अपनी लाइल्मी का इजहार किया, क्योंकि हमें खुद समझ नहीं आ रही थी कि ये मामला क्या है। वो जिनजादा सानिया के मुतालिक कैसे और क्यों जानता था और उसकी तरफदारी के लिए क्यों आ गया था। मैं बताता हूँ ना, तुम्हारी पुप्पो ने तुम्हारे एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले तुम पर जादू करवाया। तुम्हारे साथ हादसा हुआ, लेकिन डॉक्टर पूरी उम्मीद थे कि तुम चलोगी। तुमने कोशिश भी की, मगर पता चला तो ये तुम्हारी पुप्पो को जरा बर्दाश्त न हुआ। इसलिए उसने तुम पर जादू कराकर घी लेकर आई, जो तुमने भूख की वजह से खा लिया। वो इतना पुरअसर था कि तुम्हारी सारी हिम्मत खा गया, और मैं भी तुम्हारे साथ ही था। उस जादू के असर से मेरा भी नुकसान हुआ, लेकिन मैंने उस दिन उसके मुंह से सच उगलवाने की कोशिश भी की। मेरी ताकतें जादू से कम हो चुकी थी, पर मैं इससे उगलवा नहीं सका। लेकिन आज इसने खुद सच बता दिया। अब इसको मैं मौत के घाट उतार कर ही रहूंगा। जिनजादे ने हमें पूरी सच्चाई बता दी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपा अपनी ही भतीजी के साथ ये सब कर सकती हैं। इतना तो पता था कि वो नफरत करती हैं, लेकिन इस हद तक कि वो अपने ही खून को यूं तड़पाना चाह रही थी। मैंने भरपूर नफरत से आपा को देखकर चेहरे का रुख बदल लिया। नहीं, तुम मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकते। दूर रहो मुझसे। जिनजादे ने आगे बढ़कर आपा की आंखों में अपने नुकीले नाखून मारने के लिए बढ़ाए, लेकिन मैं और सानिया चिल्लाने लगी और उसने आंखों में नुकीले नाखून मारने के बजाय उनकी गर्दन दबोच ली और गोल गोल घुमाकर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। उनकी चीखें सुनकर हम दोनों ने अपने कानों पर हाथ धर लिए थे, जबकि सानिया ने मेरी गोद में सर देकर मेरे पल्लू में अपना चेहरा तक छुपा लिया था। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब अपनी गलती का खमियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। जिनजादे ने कहकर उनकी आंख में एक नाखून की लकीर दे मारी और आपा की चीखें गूंजने लगी। सानिया ने रोना शुरू कर दिया था। छोड़ो मुझे, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। आपा ने अपनी आंखों पर दोनों हाथ रखते हुए घुटनों में सर दिए रो रो कर कहा, आज तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिनजादे ने दोबारा से मारने की कोशिश की तो आपा ने अपने दोनों हाथ जिनजादे के सामने जोड़ दिए और रो रो कर मिन्नतें करने लगी। मैं अपने किए की माफी मांगती हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दो। आपा का रोना हकीकत में मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा दिल था कि आगे बढ़कर उन्हें बचा लूं, लेकिन ये भी डर लाहक हो गया कि मेरे बचाने के चक्कर में वो जिनजादा कहीं मुझ पर ही हमला न कर दे। दूसरा सानिया मेरे साथ ऐसे चिपकी हुई थी कि मैं जरा से भी हिलती तो वो चिल्लाना शुरू कर देती। रुक जाओ, छोड़ दो उन्हें, मुझसे नहीं देखा जा रहा। सानिया ने अपना सर उठाकर जिनजादे को हाथ उठाकर रोक दिया। तुम जानती हो ना कि इसने तुम्हारे साथ क्या कुछ किया है? जिनजादे ने हैरत से पूछा और आकर सानिया के घुटनों में बैठ गया। वो तो तुमने भी किया है। मैं चल नहीं सकती थी। आधी रात को मुझे यहाँ ले आए। अम्मी और मैं ये सोच कर डरते रहे कि न जाने ये सब क्या हो रहा है। तुमने भी नहीं सोचा कि हम इंसान हैं, हम तुम लोगों को देख नहीं सकते, तो कम से कम डराना तो नहीं चाहिए था। सानिया ने नफरत से जिनजादे से अपना चेहरा मोड़ लिया और तेज तेज अल्फाज में उस पर बरसने लगी, जबकि मैं दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ने लगी कि कहीं वो गुस्से में सानिया को नुकसान न पहुंचा दे। मेरे साथ किसी इंसान का होना जरूरी था, तभी मैं तुम्हें साथ लेकर आया। मैं जिसके वजूद में था उसी को साथ लाते हैं, और तुम्हारे वजूद में मैं था तो साथ ले आया।
जिनजादे ने एहतराम से सर झुकाए सानिया को जवाब दिया तो मैं हैरत अंगेज तौर पर उसे सर से पैर तक बेयकीनी से देखती रही। लेकिन बस कर दो, मैं थक चुकी हूँ, सानिया ने रोते हुए कहा। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए तुम्हारे साथ था। आज से तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम चल सकती हो। मेरी आधी ताकतें तुम्हें मैं दे रहा हूँ। तुम पढ़ो और आगे बढ़ो, शादी नहीं करनी मत करो। जिनजादे ने कहकर सानिया पर मंत्र पढ़ा और वो एकदम व्हीलचेयर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई और हंसते हुए गोल गोल घूमने लगी। मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि तुमने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया है। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ और तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने और सानिया ने उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और जब मैंने हैरत से उसकी मदद की वजह पूछी तो उसने कहा कि वो अच्छे लोगों की मदद करने वाला जिनजादा है। जब ही उसने सानिया की भी मदद करने की ठानी और आज उसे बिल्कुल ठीक करने के साथ साथ जादू जैसी मुश्किल से भी बचा लिया था। मैं अपनी बेटी को लिए घर आ गई। वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई थी और अपने पैरों पर चलकर दूसरे दिन कॉलेज भी गई। मैं बेहद खुश हो गई, जबकि आपा का आना जाना हमारे घर में बेहद कम हो चुका था। मेरे शौहर ने सानिया के ठीक होने की वजह जानना चाहिए तो मैंने कह दिया कि सानिया की कोशिशों का ही नतीजा है और वो ठीक हो गई। आपा की सच्चाई बताकर मैं उन्हें मजीद शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो पहले से ही शर्मिंदा थीं और इसी वजह से वो कम ही अब मेरे घर आती थीं। ये तो शुक्र था कि सानिया ठीक हो गई थी, जिसकी वजह वो नेक जिनजादा था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।